Hello students, hope you are all fine and safe at home and watching my videos. This is the final video of the chapter Cell. First, I have to discuss a question with you. जो एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है तो मुझे लगा कि तुम लोग के साथ भी शेयर मैं कर लूँ उसको. क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द सेल इज द मेन अरीना ऑफ द cellular activity. So that part of the cell is the cytoplasm where various metabolic activities are going on. Okay. Now आज बच्चों मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन भी दे रही हूँ. Name two semi-autonomous organelle of the cell. Options are lysosomes and nucleus, mitochondria and Golgi complex, lysosomes and chloroplast, mitochondria and chloroplast. और इसका जो आंसर है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी बच्चों, वहां से तुम इसे देख सकते हो. नाउ कमिंग ऑन द मेन टॉपिक, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. कमिंग ऑन द मेन टॉपिक, उस दिन हमने यहाँ वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेलीज पढ़े थे. न्यूक्लियस, डिक्टियोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum में difference क्या है? In rough endoplasmic reticulum, surface it seems to be rough because of the presence of ribosomes on its surface. This is the rough endoplasmic reticulum, rough ER. Next cellular organelle is the vacuole. In plant cell, a big vacuole is present. One or two big vacuole is present. The content filled in the cell sap is called cell sap. In case of plant cell, cell wall is large and rigid because of the presence of cell sap in it, and the membrane of this vacuole is called tonoplast. And this is the vacuole. In plant cell, there is a large vacuole may occupying 50 to 90% of the cell volume. But in animal cell, if it is an animal cell, तो उसमें छोटी छोटी सी vacuoles होती हैं present. Function क्या है? Because of vacuole, plant cell will become rigid and turgid. और इसमें store house है, ये amino acids का, sugar को store करके रखता है. Animal cells के अंदर vacuoles का थोड़ा different function है. Like in amoeba, food vacuole is present which help in the digestion of food, and a special type of vacuole which is called contractile vacuole which helps in the expulsion of water from the cell outside the amoeba body. Amoeba is unicellular organelle. Next is the centrosome. Centrosome is present only in the animal cell, not in the plant cell. So because this is the plant cell, so इसमें हम इसे draw नहीं करेंगे. It is found in only animal cell. This is the centrosome. So centrosome का important function is it helps at the time of cell division. Okay. Next, जैसे हम में चलने के लिए होते हैं locomotory organs, legs हैं हम में, ऐसे ही cells के locomotory organs are cilia और flagella. Like तुम लोगों ने देखा होगा, in case of Euglena, a single flagella is present. This is the flagella. It is a locomotory organelle of the cell. और paramecium के diagram में तुम लोगों ने देखा होगा, small hair-like structures are present. These hair-like structures are called cilia. With the help of cilia and flagella, the cell is able to move. Now, the very important question for this chapter is the difference between the plant cell and animal cell. सबसे important difference ये है. एक और important difference इस chapter में difference between the prokaryotic cells and the eukaryotic cell. एक और difference इसमें important है cell wall and plasma membrane. दो differences हम पहले discuss कर चुके हैं. Now we come to the difference between the animal cell and the plant cell. In case of plant cell, cell wall is present. But in animal cell, cell wall is absent. Plastids are present in plant cell. Plastids are absent in animal cell. Centrosome is present in animal cell and absent in plant cell. Vacuole is large
in plant cell, but in animal cell vacuole is smaller in size. ठीक है, इसके अलावा डिक्टियोसोम is simpler या Golgi apparatus is simpler in case of plant cell. In case of animal cell it is more complicated. ठीक है, ये सब differences important है. When differences आते हैं तो तुम लोग को वहाँ डायग्राम भी बनाना होगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक in this chapter for you is plasmolysis. What is plasmolysis या process plasmolysis means? If we dip a plant cell in hypertonic solution, then what will happen? Then the contents of the cell will become acid because water निकल कर बाहर आ जाएगा. तो cell wall is rigid, so वो तो वैसी ही रहेगी, but plasma membrane along with the nucleus and nuclear content will come on the cell side, on a side of the cell. This process is called plasmolysis. और ऐसी सेल को जिसमें से वाटर बाहर निकल आया है, सारा कंटेंट एक साइड में आ गया है, this type of cell is called plasmolyzed cell. इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, डीप्लाज्मोलाइज कैसे कर सकते हैं? फिर से हम इसे अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है प्लांट सेल को, देन इट विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड. और इसे फिर से हम हाइपोटोनिक में डालेंगे तो इट विल गेन वाटर अगेन एंड फिर से वो डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगी. अगर हम इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फिर से डाल देंगे तो ये डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगी, फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी. Next important topic for 1 mark is the significance of membrane. आजकल वायरसेस का सबने सुना है बच्चों, कोरोना का भी तुम लोगों ने सुना है कि जब तक कोरोना वायरस लिविंग होस्ट में नहीं जाता है तब तक वो इनएक्टिव पड़ा रहता है. वायरसेस डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, सो वो कोई भी लाइफ एक्टिविटी शो नहीं करते हैं जब तक वो आउटसाइड होते हैं लिविंग बॉडी के. लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी में जाते हैं फिर हमारी ही सेल मशीनरी को यूटिलाइज करके मल्टीप्लाई करके और हमें ही हार्म करते हैं. ऐसे होते हैं वायरसेस. तो मेम्ब्रेन की बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि उसके बिना लिविंग बीइंग अपने फीचर्स शो ही नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज फंगस और प्लांट सेल कैन विदस्टैंड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विदाउट बस्टिंग. जैसे एनिमल सेल को अगर हमने डाला है इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, then it will gain water, gain water, gain water. तो क्या हो जाएगा बच्चों? It will swell up and एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि animal cell will burst. But if it is a plant cell, then because of the presence of cell wall around it, it can withstand the hypotonic solution without bursting. Because जितना प्रेशर ये यहाँ सेल वॉल पर डालेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर absorbing water from the hypotonic solution, then उतना ही प्रेशर सेल वॉल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इनसाइड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये हमने पढ़ा है. सो ये प्लांट सेल कैन विदस्टैंड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विदाउट बस्टिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस. बहुत डिटेल तो बच्चों नहीं है कोर्स में, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसे समझें कि है तुम लोग के कोर्स में. इन केस ऑफ माइटोसिस सिंगल सेल विल डिवाइड एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल. डॉटर सेल्स ही बोलते हैं, ट्रैंड है, सन सेल्स नहीं बोलते हैं. इफ हम ह्यूमन बीइंग का केस ले लेते हैं, इन ह्यूमन बीइंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द सेल. After mitosis, 2 daughter cells are formed and these 2 daughter cells have the same chromosome number as that of the parent cell. This is called the parent cell and जो division के बाद form होती हैं they are called the daughter cells. And in daughter cells में 23 pairs of chromosome are present in the each cell. ऐसा कैसे हो पाता है? Before the cell division, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो सारे कंटेंट्स को डीएनए को डबल करता है और डबल पहले से ही हो जाता है
तो half of the DNA content chromosomes goes in this cell and half in this, so number of chromosomes will remain the same. हम माइटोसिस को कभी कभी इक्वेशनल डिवीजन भी बोल देते हैं, because number of chromosome in case of mitosis will remain the same. This mitosis will occur at the time of growth and development and at the time of repair. अगर बॉडी में कहीं कोई टूट फूट हो गई है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना है, तो माइटोसिस विल अकर. सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन इज द मियोसिस. इन केस ऑफ मियोसिस, ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल्स आई एम टेकिंग. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, बट इन meiosis a single parent cell will give rise to 4 daughter cells. 4 daughter cells are forming and the number of chromosomes reduced to half. इसमें है 23 pairs, मतलब कि 46 chromosomes are present, and in the daughter cells only 23 chromosomes are present. इसमें कितनी daughter cells form हो रही हैं? 4 daughter cells are forming, and this is also called reductional division. Why it is called reductional division? Because in this process number of chromosomes is reduced to half. ठीक है? और ये कब होती है? It occur at the time of gamete formation. gamete formation में gametes क्या होते हैं? शायद तुम लोग को पता होगा. Male and female gametes are there. Sperm is the male gamete and egg or ova is the female gamete. At the time of egg and sperm formation, meiosis will occur. क्यों होता है ये जरूरी? स्पर्म एंड एग फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं एंड फिर उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से 23 पेयर्स हो जाता है. मैंने एक बुक में कहीं पढ़ा था कि अगर गेमीट फॉर्मेशन के टाइम मियोसिस नहीं हो रहा होता तो स्पर्म में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते, एग में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते. नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा डबल क्रोमोसोम्स का नंबर होता रहता. तो फिर पूरे यूनिवर्स में अगर ऐसा ही होता गेमीट फॉर्मेशन के टाइम में अगर मियोसिस नहीं होता तो पूरे यूनिवर्स में केवल डीएनए कंटेंट ही दिखाई पड़ता. बट अच्छा है कि मियोसिस होता है. मियोसिस की वजह से ही पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम है वो डॉटर सेल में आकर हाफ हो जाते हैं, एंड जब स्पर्म एंड एग फ्यूज करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट विल फॉर्म. तो इसमें 23 क्रोमोसोम इसमें है, 23 पेयर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द एग. तो जाइगोट विल रीस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशंस अगेन. उसमें 23 पेयर आ जाते हैं. ऐसी सेल को जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, शायद तुम लोग को कहीं काम आ जाए टर्म, हैप्लॉइड बोलते हैं उसको. और जहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म में है ऐसी सेल्स को बोलते हैं डिप्लॉयड सेल्स. कहीं कहीं जनरलाइज करके ऐसे 2x भी लिखा होता है. इनको उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम x से भी हम जनरलाइज करके ऐसे दिखा सकते हैं. बट मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया है ह्यूमन बीइंग का. ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है. माइटोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर, एंड मियोसिस विल अकर एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन. स्पर्म गमीट फॉर्मेशन कौन कौन से गमीट्स? 2 हैं. मेल गमीट इज द स्पर्म एंड फीमेल गमीट इज द एग. ठीक है बच्चों, आज हमने ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट किया है. होप जब तुम लोग अपने एग्जाम्स में जाओ प्रिपेयर करके या टेस्ट में, तो बच्चों इस वीडियो को भी देखें. और ये फाइनल वीडियो है 5th, और इससे पहले भी हमने और वीडियोस बनाए हैं जिनके हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से सारे वीडियोस देख के जाओ तो तुम लोग को बड़ा बेनिफिट मिलेगा बच्चों. अब मेरे वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले. ठीक है बच्चों, बाय, सी यू. नेक्स्ट वीडियो बच्चों मैं तुम लोग के पास भेजूंगी मोशन चैप्टर के लिए. उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और मोशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, स्टे सेफ, बाय बच्चों.